today we will share about the different kings of Israel and Judah. और आज हम अलग अलग के राजाओं के बारे में देखेंगे जो जुड़ा और इजराइल के बारे में। So, and we also have read it something and something God has touched you. You may also share the word of God. और आपने भी जब पढ़ा होगा तो प्रभु ने आपको कुछ बात की हो तो उन बातों में से आप भी बता सकते हैं। So we go a little bit into the history as to about the kings of Israel and Judah. तो हम थोड़ा इतिहास के बारे में देखेंगे कि जुड़ा के बारे में और इजराइल के राजाओं के बारे में। The first king of Israel was Saul. और इजराइल का जो पहला राजा था वो साउल था। And Saul was very good initially, but later on he forsook the Lord and went into had all evil spirits troubling him, and then he died. और साउल जो था शुरुआती तौर पे तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में उसे बुरे रास्ते में चला गया और दुष्ट आत्मा भी उसे सताने लगा और बाद में वो मर गया। And after that, for a short time, his son Ishobeth, I think, यस यस। uh, Ishbosheth, reigned in place of Saul for a short period of time. और साउल के बाद उसका जो बेटा था इशबोशेत, वो जो था थोड़ा टाइम के लिए वो भी राजा बना। But then he was taken away, and then David became the king of Israel. लेकिन उसके बाद जो राजा का पद था वो हट गया और बाद में दाऊद जो है राजा बन गया। And he was a man after God's own heart and did all the things, most of the things he did was right in the sight of God. और वो जो था परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला था। और जो भी दाऊद ने किया अपने जीवन में, बहुत सारी अच्छी बातें परमेश्वर की नजरों में जो सही है वही उसी बात को ज्यादा किया। Except in the matter of the adultery with Bathsheba and the killing of her husband. खाली वो जो बात हुआ था बत्शेबा के साथ जो बेविचार हुआ था उसको छुड़ा कर। And then also he took the census or numbered the population of Israel, which God was not at all pleased. और जो जनसंख्या जो इजराइल के बारे में गिनती किया था उसके मामले में भी परमेश्वर खुश नहीं थे। But then he repented and came back to the Lord. लेकिन बाद में क्या हुआ, वो मन फिराया और परमेश्वर के पास आ गया। And after he died, Solomon, his son, became the king. और जब दाऊद मर गया तो उनका जो बेटा था सुलेमान वो राजा बन गया। And he was the king for 40 years. और वो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। And he was a really God-fearing man, and he became the wisest man to live in Israel. और वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और बहुत ही बुद्धिमानी से इजराइल में रहता था। But after he became rich and he married many wives and had many wives, more than I think more than nearly 1,000 wives and concubines, he became backslidden and he went into idolatry. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सुलेमान ने बहुत सारी शादियां विवाह किया, बहुत सारी महिलाओं को, जैसे कि 1000 के करीब थे, और बहुत सारे उन्होंने दास दासियां भी रख लिया। So towards the end of the life, he went to idolatry and was displeasing to the Lord, and his last years were very bad. और बाद में जीवन के अंत में वो क्या हो गया, वो मूर्ति पूजा में चला गया और अंत में वो बहुत सारे उसका जीवन जो है पूरा व्यर्थ हो गया। So we see that after that, God had decided to divide the kingdom because of Solomon's unfaithfulness. और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने दो राज्य का बंटवारा किया। एक क्योंकि जो सुलेमान जो था वो विश्वास योग्य नहीं था। So the whole of Israel was divided into two. One was Judah, which remained with Solomon's son Rehoboam, and the remaining, the 10 tribes went to Jeroboam, who was a worker in the Solomon's army or Solomon's employment.
तो उसके बाद दो राज्य का बंटवारा हो गया, वो जूदा का राजाओं और इज़राइल का राजाओं। उसमें रेहवान और जेरोब्याम था। So both of them did evil in the sight of God. और दोनों ने ही परमेश्वर की नजर में बहुत बुरा किया। Rehoboam, even though he was the son of Solomon, he he started worshipping idols, and because of that, the whole of uh, the kingdom of Judah began to also go into idolatry. और रेहवान जो सुलेमान का बेटा था, वो भी मूर्ति पूजा में चला गया, और बहुत सारा जो कि राजा किंग ऑफ जुदा के जितने भी राजा थे, सब बहुत सारे बुराइयों में ही चले गए। But they still had the word of God and the Bible with them and the priests, and there was some fear of God at least in his life. लेकिन फिर भी परमेश्वर का जो भय और परमेश्वर का वचन, और थोड़ा उसमें उनके अंदर परमेश्वर प्रभु का भय बना हुआ था। But for Jeroboam, he went totally into idolatry and began to worship the molten, the calf and the goat and all types of idolatry began to start in northern Israel. और जेरोबोआम जो था वो लेकिन पूरी तरह से ही बुराई कर रहा था, पूरा जानवरों का और मूर्ति बना दिया था, और बहुत सारा जो है गलत करने के राह में ले जा रहा था। We must remember that these are the children of the people of God. They were not like the idolaters around them. और वो परमेश्वर के बच्चे थे, और वो आसपास कभी भी मूर्ति पूजा नहीं होता था। So they were the ones who God called them out of Egypt through Moses, and then he gave them so many prophets and judges like Samuel, David, and such God-fearing people, but they went after idolatry. और परमेश्वर ही ने उनको इजिप्ट से, मिस्र देश से निकाला था। मूसा और जितने भी सब आए थे उनके वंशज से, सब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया था, लेकिन बाद में लोग मूर्ति पूजा के रास्ते में, गलत रास्ते में चले गए। So the next 400 years after David, the uh, the uh, the people of Israel, some of them, the kings were good, especially in Judah, but most of the kings in Israel were very bad. और 400 वर्ष के बाद जब देखते हैं कि जुदा में जो जितने भी राजाएं थे, उनमें तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर हम इज़राइल में देखते हैं, सबके मोस्टली सबके सब जो है बुरे रास्ते में ही चले गए। So the good kings in Judah was Asa, who was the grandson of Jeroboam, और of Rehoboam. और रेहबान का जो आसा था, ग्रैंडसन था, वो उन्होंने वो एक उसका फैमिली में से था, And he was a good king. और वो एक बहुत बढ़िया राजा था। And then there was Jehoshaphat. और उसके बाद जेहोशापात जा। And then they had other good kings like Uzziah, Jotham, and Hezekiah and Josiah. Say Uzziah, Jotham, और दूसरे राजाओं जो थे, उजाया थे, जोताम थे, then Hezekiah and और Josiah. उसके बाद हिजकिय्याह थे और जोसाया थे। So out of nearly 20 kings that lived in the 400 years, only 5 were good and remaining were all very bad. और जुदा में हम देखते हैं कि जितने 20 राजाओं में से सिर्फ 5 ही लोग जो थे, 6 लोग ही जो थे, वो परमेश्वर के नजर में सही थे। But in Israel, nearly everybody except one, Jehu, who was a captain, everybody was so evil. लेकिन हम देखते हैं कि इज़राइल में जो था, वो पूरी तरह से सभी लोग बिखर गए थे, बुरे रास्ते पे थे, लेकिन सिर्फ जेहू जो था वो सही में थोड़ा सही था परमेश्वर की नजर में। So Israel was the northern kingdom and Judah was the southern kingdom. और इज़राइल जो था वो उत्तरी था, और जुदा जो था दक्षिणी था। But in spite of these, God loved his people and sent prophet after prophet to warn them and to turn them away from evil and idolatry. और ये सब के होने के बावजूद भी परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा, और एक के बाद भेजकर उनसे बातें करते थे। So I even see that how in spite of having such good uh, forefathers like Samuel, David, how these people went into idolatry, and because of that, the anger of God is upon them. और मैं सोचता हूँ कि कैसे इतने अच्छे अच्छे राजा थे, दाऊद थे,
और जो ये सब परमेश्वर के लोग थे, लेकिन फिर भी कैसे ये लोग बुरे रास्ते में चले गए और भटक गए? That was because they went after idolatry. क्योंकि वो मूर्ति पूजा में बहुत ही लवलीन हो गए थे। We know that after behind every idol is the devil or all demons. और हम जानते हैं कि हर एक मूर्ति पूजा के पीछे शैतान रहता है। And they encourage us to do what we like. और वो हमें प्रोत्साहन करता है कि तुम करो जो अच्छा लगता है, गलत करो, कोई दिक्कत नहीं। And because we do what we like, we do sin and we don't like to listen to God's word and we go away from God's word. और इसका कारण क्या होता है, फिर हम जो गलत है वही करते हैं और फिर हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। And because sin is so enjoyable, we like sin, more and more sin people do. और पाप जो है बहुत मनोरंजन और आनंद देता है, और उसके कारण ही हम बहुत ही बुरा हो जाते हैं। Sexual sin. लैंगिक पाप। It is very enjoyable to everybody. और ये बहुत ही आनंदमय है सबके लिए। But we have to say no to it because we fear God. लेकिन हमें कहना है नहीं, मैं ये रास्ते में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। And to be proud and arrogant and angry is also just to show my importance. और नफरत, घमंड और बहुत सारा जलन रखना और हम दूसरों को दिखाना, ये सब बातें जो है पाप है। And because of that, we don't want to humble ourselves. We want to become very proud and don't listen to anybody. और इसके कारण क्या होता है कि हम नम्र नहीं होते हैं और जो किसी की बात भी हम नहीं सुनते हैं। But when the kings humble themselves before God, then God bless them. लेकिन जब राजा जो थे परमेश्वर की नजर में दीन होते थे, नम्र होते थे, तो परमेश्वर उनको बहुत आशीष करता था। So they said, no, we are not going to do what we like. We are going to fear God. लेकिन हमें जो वो कहते थे, हमें जो परमेश्वर कहते हैं वही करना है, हमें परमेश्वर का भय मानना है। So after Solomon, Asa was the first king who feared God, and he really wanted to honor God. और सुलेमान के बाद जो आसा जो था, वो सच में परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर का आदर करना चाहता था। But towards the end of his life, he became so proud that he began to think that he could do everything on his own. लेकिन जब जीवन के अंत में वो बहुत ही घमंडी हो गया और सोचा कि मैंने ये सब अपने बल पे किया है। And because one of the prophets came and warned him, he got so angry that his hand became like a leper. और कोई भविष्यवक्ता आया, परमेश्वर ने भेजा और उसका जो हाथ जो था पूरी तरह से लकवा मार दिया था। And then he died. और उसके बाद वो मर गया। So we see that he started off well, but he died towards the end of his life. He backslid. और वो शुरुआत तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अंत में वो बहुत पीछे हट गया। And then we see the other example of his son Jehoshaphat, who was a very godly king. और उसके बाद हम देखते हैं यहोशाफात, जो बहुत ही धार्मिक था, प्रभु की नजर में, ईश्वरीय नजर में बहुत भक्ति रहता था। He removed all the idols, most of the idols, and he started worshiping and praising God and honoring God. और बहुत सारे जितने भी मूर्ति पूजा हो रहे थे, वो सबको उसने वहां से हटाया और परमेश्वर के महिमा महिमा किया। But towards the end of his life, he also began to compromise a little bit with the northern nation of Israel. लेकिन हम देखते हैं जीवन के अंत में भी उसने भी समझौता कर लिया और फिर वो भी बैकस्लाइड जैसा होने गया। And then we see the other kings, but the best king of them was other last two kings were Hezekiah and Josiah. और जो अंत के दो राजा हैं, जैसे हेzekiah और जोसियाह। Hezekiah also we read in 1 Kings and 2nd Chronicles. He also feared the God, but then towards the end of the life, he became proud and began to show off all his riches to all the people of the country, the Syrians who came to see his country. और हेzekiah के बारे में हम पहला राजा और दूसरा इतिहास में हम पढ़ते हैं कि वो भी शुरुआत अच्छा किया था, लेकिन बाद में वो भी अपने इच्छा के अनुसार भटक गया। The last king was Josiah, who was the best king of all. और जोसाया जो था उसमें से सबसे बहुत अच्छा राजा था। He really removed all the idol worshippers and all the evil things from the land of Israel, and then he really brought the fear of God into the land of Israel.
और वो जो था पूरी तरह से उसमें मूर्ति पूजा को हटा दिया और सच में वो परमेश्वर का भय मानता था और प्रभु की महिमा करता था। And after that, his sons and his grandsons forsook the Lord, and that is why God allowed them to go to Babylon and to captivity. और उसके बाद जो उनके जो बेटे थे वो सब लोग भी बुरे रास्ते में चले गए और उसके बाद बेबीलोन में उनको रख दिया गया। So we see that, even if we are God's people, lots of evil can come to us if we don't fear God. और हम भी परमेश्वर के जन होने के कारण अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे बुराइयां आ जाएगा। So each king had to take his own decision. और हर एक राजाओं को खुद से निर्णय लेना रहता था। So you and me also are like kings every day, and we have to take our decision whether we're going to love the Lord with all our heart or we're going to love the world. आप और हम राजा हैं और हमें निर्णय लेना है कि हम किसे खुश करें, परमेश्वर के खुश प्रेम में को खुश करें या हम संसार से प्रेम करें। In James it says that if any man loves the world, the love of then James chapter 4, it says that uh, verse 4, याकूब के अध्याय 4 वचन 4 में हम जाएंगे। you adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility towards God? Therefore, whoever wishes to become a friend of the world makes himself an enemy of God. और वचन याकूब 4 कहता है कि हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। So the devil offers all these idols that are there in this world of good food, sex, and a lot of money and fame. And if we run after that instead of God, then we become the enemy of God. और शैतान भी हमें संसार बहुत सारा चीजों का हमें फायदा देता है, बोलता है अच्छे खाना, लैंगिक अभिलाषा और बहुत सारे सुख विलास संसार के रहते हैं, तो उसमें हमें शैतान हमें लुभाने की कोशिश करता है। So why are we talking about these things? और हम लोग क्यों इस सब के बारे में बात कर रहे हैं? Because most believers who are the children of God are running after all these worldly idols, and because of that, they become enemies of God. क्योंकि बहुत सारे जो है प्रभु के लोग जो है मूर्तियों के पीछे भाग गए, चले जा रहे हैं और परमेश्वर की वो दुश्मन बन गए हैं। In Judah, all the services was going on, sacrifices were going on, all the singing and all the festivals were going on to honor God, but their behavior was very bad as far as their private lives are concerned. और जुदा में जो था बहुत सारा एंटरटेनमेंट और वर्षी आराधना सब हो रहा था, लेकिन वो लोग जो जीवन जीते थे बहुत ही बुरा जीवन जीते थे। That's why God told them, see, I'm not interested in all your sacrifices. I want a heart that is humble and contrite. तो परमेश्वर कह रहे थे मुझे ये सब बलिदान नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जो तुम्हारा दिल नम्र हो और टूटा हुआ हो। We should love God with all our heart. और हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए पूरे हृदय से। And we should give first place and priority to God in our lives. और हमारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। When we don't give God first priority in our lives, we become idolaters. अगर हम परमेश्वर का स्थान पहला नहीं देते हैं तो हम भी मूर्ति पूजक के समान बन जाते हैं। And then the devil takes over our lives, our families, and all the wrong things happen to our life. और फिर क्या होता है, शैतान जो है वो अपने कब्जे में ले लेता है और फिर सारे क्षेत्र में, परिवार में, घर में वो अटैक करके हमें नुकसान करता है। God loves us very much and He longs for us to come back in repentance. और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो बहुत ही दिल से चाहते हैं कि अब मेरे लोग मेरे पास आ जाए। And He wants us to take away all and throw all the idols away and destroy them and give Him first priority in our lives. और वो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जितने भी जो है वो पहले परमेश्वर का स्थान पहला होना चाहिए, बाकी सब हटा देना चाहिए जीवन से। And because the children of Israel and the children of Judah did not give that, God allowed them to be punished by other foreign kings. और जोधा के जो थे वो राज्य थे, उन्होंने कभी भी ये सब मूर्ति पूजा में चले गए, परमेश्वर को कभी भी अपना पहला स्थान नहीं दिया, इसलिए उनका वो भटक गए। God was patient with them for nearly 300 to 400 years.
और परमेश्वर उनके साथ बहुत धीरज बरत रहा था लगभग 400 वर्ष तक। He went so many prophets to them to warn them and to encourage them. और बहुत सारा भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा था कि उनको चेतावनी दे, उन्हें समझाए कि मन फिराए। We remember we can read that it was people like Elisha, Elijah, Elisha, Jeremiah, and Isaiah were all living during this time. और उस समय पे एलीशा, यिर्मयाह और यशायाह जीते थे उस समय। And they all were warning the children of Israel not to go in the ways of the evil ways of the people around them. और उन सबको भविष्यवक्ताओं लोग चेतावनी देते थे कि तुम लोग यहाँ उन लोग के साथ कहीं मेल मिलाप मत करो। But when you read that, most of them did not listen, and because of that, they suffered for it. और हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उनके कारण क्या हुआ, वो अपने जीवन को बहुत ही दुखों से छल्ली बना लिए। When we look at Christians all around in so many groups and churches, और जब हम देखते हैं हर जगह मसीह जगत में कलीसिया और बहुत सारे विश्वासियों को, most of their leaders and the people are running after money and fame. और बहुत सारे जो अगुआ है वो सब सिर्फ आदर की खोजी है और पैसे से प्रेम करते हैं। And this is the big idolatry. और ये बहुत बड़ी एक मूर्ति पूजा के समान है। Jesus said you cannot serve God and you cannot serve money. और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। And God says that He opposes the proud but gives grace to the humble. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं अधीन लोगों को अनुग्रह देता हूँ, लेकिन जो घमंडी है उनको मैं सामना करके हटा देता हूँ। That is why there is so much of immorality in most of the churches also. और इसलिए बहुत सारी कलीसिया में जो है पूरी तरह से अश्लील जीवन हो गया है। There is all sorts of anger and violence and evil in the lives of so many believers. और बहुत सारा गुस्सा, झगड़ा और जलन बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में जगह बना लिया है। And this is the same thing that happened in the lives of the Corinthian church in the time of the Apostle Paul. और प्रेरित पौलुस के समय में भी कुरिन्थियों कलीसिया में भी ऐसा ही हो गया था। There was so much of immorality, so much of violence, and so much of fighting and quarreling all the time. और बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, बहुत सारे व्यभिचार हो रहे थे, बहुत सारा एक दूसरे में नफरत भरा था। And the Apostle Paul had to tell them that if you have practiced like this, you will definitely go to hell. और पौल प्रेरित चेतावनी देते थे, अगर तुम लोग ऐसा करते रहोगे तुम लोग नरक में चले जाओगे। And the Apostle Paul was not interested in pleasing people. और प्रेरित पौलुस जो थे वो कभी भी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं जीते थे। He only wanted to please God. वो हमेशा परमेश्वर को खुश प्रसन्न करने के लिए जीते थे। He told that if this person who has done that immorality, please take him out of the church, let him go. और अगर ये व्यक्ति ने व्यभिचार किया है इसे यहाँ से हटा दो, क्योंकि कलीसिया से बाहर निकाल दो। He told that there is not one spiritual person in the whole church. और उन्होंने बोला कि मैं एक व्यक्ति को, आत्मिक व्यक्ति भी मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। And because he gave these strong words in second Corinthians chapter 7, we said most of them repented with a good heart. और जब हम सेकंड कुरिन्थियों के साथ में देखते हैं, जब पौलुस ने ऐसा चेतावनी दिया तो बहुत सारे लोगों ने मन फिरा लिया। And they set everything that was wrong in their lives right. और जो भी उनके जीवन में सब गलत था उसको जल्दी ही उन्होंने सब सही कर दिया। And God loves us when we repent. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है जब हम मन फिराते हैं। We have to ask God, Lord, what is wrong in our life? और प्रभु से हमें पूछना है कि प्रभु हमारे जीवन में क्या गलत है वो आप दिखाए। We are running after the things of this world and not giving time to God. और हम संसार की चीज के पीछे भाग रहे हैं और प्रभु के लिए समय नहीं है। Instead of delighting in God and the word of God and prayer, we are delighting in so many other things. और हमें प्रभु में हमेशा लवलीन रहना, उनके जीवन में जीने में आनंद रहना चाहिए, तो हम संसार की बातों में भूले हुए हैं। Jesus said, my kingdom is not of this world. प्रभु यीशु ने कहा मेरा राज इस संसार का नहीं है। So, but most believers are running after the things of this world. लेकिन ज्यादातर विश्वासी इसी संसार की चीजों के पीछे ही भाग रहे हैं। And they are praying to God, but God is not listening to their prayers at all. वो परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे हैं।
Because of this, their life is full of sin and misery, and there's no happiness and joy in their life. और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि पूरी तरह से वो जीवन पाप से भरा हुआ है और फिर उनके जीवन में कोई भी आनंद और शांति नहीं है। So when they repent, God fills them with the Holy Spirit. और जब वो मन फिरा लेते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा से उनको भर देते हैं And then joy and peace and love comes back into their heart. और फिर प्रभु का आनंद और शांति और उनके हृदय में आ जाता है। So the purpose of all this, God sends His prophets, people of God, to warn us to turn away from sin and to turn to God. और मेन मकसद यही है कि प्रभु भविष्यवक्ताओं को इसलिए भेजते थे कि उनको चेतावनी दे कि उनको वो अपने पापों से मन फिरा ले, So that our lives will grow closer to God in holiness and we can worship God in spirit and in truth. तो जिससे कि हमारा जीवन बहुत प्रभु के करीब हो जाए और पवित्रता में हम बढ़ते जाएं। So that we can be prepared for heaven to live in humility and love all the time. और हम फिर स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाए और हमेशा अनंत जीवन के लिए हम प्रभु के साथ शांति में रहें। And all these tests that we face are just all these trials we face are just like a test to see whether we love God or we love ourselves or we love the world. और जितने भी हम हर दिन जितना भी समस्याओं हमारे जीवन में आता है जो सामना करते हैं वो इसलिए आता है कि परमेश्वर देखते हैं कि तुम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो या किसी और से प्रेम करते हो। The children of Israel and the children of Judah did not fear God, and because of that, God punished them and made them prisoners and took them to another country. और जुदा के जो राजा था वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे इसलिए उनको अलग जगह पे हटा दिया गया। First, Israel was taken prisoner and went to Assyria, and then after that, after a few hundred years, then Judah also was taken captive, and they were also taken to Assyria, wherever it is. It is known as Mesopotamia. यस, तो उसके बाद भी जो जुदा का राज था वो भी अलग कर दिया गया और जो इजराइल के जो थे उनको भी अलग कर दिया गया। And all the beautiful temple which Solomon built, everything was broken down. और जो भी सुलेमान ने बनाया था वो सब उसको तोड़ दिया गया। So all the children of Israel thought that because of the temple and because God loves us very much, nothing will happen to us. और वो लोग सोचते थे कि अब हमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा। So, but if we don't fear God, God wants people who fear Him. So, when there's nobody who fears Him, God will forsake everything of that person has done. और जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है फिर परमेश्वर से वो दूर हो जाता है। So, my dear brothers, we must really individually fear God. If other believers are not fearing God, even in our church or other churches, you must fear God and live before God's face. तो इसलिए भाइयों हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, चाहे कोई अगर दूसरा विश्वासी नहीं मान रहा या कोई दूसरे कलीसिया के भय नहीं मान रहे, लेकिन हमें परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन जीना। Trust in God and do the right. प्रभु पे विश्वास रखें और जो सही है उनकी नजर में वही करें। Then God will save our lives and save our families and the people around us. और फिर प्रभु आपको और आपके परिवार को और आसपास के लोगों को भी उद्धार करके उनको बचाएगा। So, my dear brothers, and God wants us to be an example in the fear of God and to love God with all of our hearts. और इसलिए परमेश्वर हमें एक चेतावनी उदाहरण दे रहे हैं कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उनकी नजर में एक सही उदाहरण बन के जीना चाहिए। Don't become so busy that we have no time to pray, to read the Bible. और अपने जीवन को इतना भी व्यस्त ना कर दे कि आपके पास प्रभु के लिए और उनके वचन पढ़ने के लिए समय ही ना हो। Don't mix around with so many unbelievers so much. और ज्यादा अविश्वासियों के साथ समय ना बिताएं। And keep God first and pray for God's people and for God's kingdom and do the work of God. और प्रभु के से प्रार्थना करें प्रभु के लोगों के लिए और प्रभु के राज्य के लिए और जो प्रभु पे भरोसा रख के जीवन जिए। And then as we clean up these things, our mind will be clean and we will really think more about God and think about what God wants us to do in our life and His purposes. अगर हम इस प्रकार से करते जाएंगे तो हमारा जो मन है विवेक है शुद्ध होता जाएगा और हम फिर प्रभु के राज्य में बढ़ते जाएंगे। God has not called us to live like the people of this world. प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम संसार के जैसा जिए।
He wants us to be a holy people. वो चाहते हैं कि हम पवित्र लोग रहें। So holiness starts from ourselves personally. और पवित्रता जो शुरुआत होता है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से होता है। If your father and mother or your brother or sister or wife are not following the Lord, you must follow the Lord. अगर माता पिता भाई संबंध और रिश्तेदार अगर प्रभु का पीछा नहीं करते, लेकिन हमें प्रभु का पीछा करना है, Then we can be filled with the joy of God and we can walk close to God. और फिर क्या होगा, पूरी तरह से आनंद हमारे जीवन में भर जाएगा और हम प्रभु के बहुत ही करीब हो जाएंगे। And God's people, God took them one by one, just like Noah walked with God and Enoch walked with God, Abraham walked with God. और प्रभु जो है एक एक करके उनके बारे में गवाही देते हैं, जैसे नोहा प्रभु के साथ चला, इनोक प्रभु के साथ चला, और जितने भी लोग थे प्रभु के साथ चलते थे। Many of Noah's children sometimes they did not walk with God. They went into sin. और नोहा के जितने भी नोहा के बहुत से जो संतान थे वो भी उनके प्रभु के भय नहीं मानते थे, प्रभु के साथ नहीं चलते थे, बल्कि जो उनको अच्छा लगता था वो करते थे। Abraham's children, many of them did not follow the Lord. और अब्राहम के भी बहुत जो संतान थे वो भी प्रभु के पीछा नहीं करते थे। Isaac's son Esau, he forsook the Lord and he ran after the worldly things. और इजाक के भी जो सन थे वो भी अपना जो अच्छा लगता था वही करना चाहते थे। So God looks for people who seek after Him. और प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सच में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। And when we seek after Him with a true heart, God will be with us and will be very close to us. और अगर हम प्रभु का ढूंढेंगे पूरे दिल से तो प्रभु हमारे बहुत नजदीक आ जाएगा। The choice is up to you and me. और चुनाव जो है आपका और मेरा है। Are we going to please God? Are we going to please ourselves or our relatives or friends? और क्या हम प्रभु को खुश करना चाहते हैं या संबंधी, रिश्तेदार और परिवार को? And it's good that we please God because we may have to suffer for some time now, but then our eternal destiny is very good. लेकिन सबसे बढ़िया है हम प्रभु को खुश करें, प्रभु के लिए जिए। थोड़ा सा दुख तकलीफ और कलेश होगा, लेकिन अनंत जीवन के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। And then many of our friends and our relatives also will come to the Lord because we took a stand for the Lord. और बहुत सारे परिवार, रिश्तेदार और संबंधी सब भी वो भी हमारे पर देखेंगे चाल चलन को, वो भी एक दिन प्रभु में आ जाएंगे। So my dear brothers and sisters, we have to learn a lot from these kings of Israel. और हम इज़राइल के राजाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। I sent a nice small chart, so you can look at the chart, number of chart, and they have written in English. So if you can try to go through, see how many good kings were there and how many bad kings were there. और मैंने एक चार्ट जो है भेजा है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोग बुरे किए, किन्होंने गलत किया, कितने लोग सही किए। The normal tendency for you and me is to go towards sin and go towards worldliness. और मेन बात यही रहता है कि इस संसार और बुराई से हम भागे। So no, our tendency is to go towards that side. We have a desire in our flesh to please the world and to become very worldly and to go towards sin. और हमारे अंदर आमतौर पे जो इच्छा रहता है, वो अभिलाषा रहता है कि संसार को खुश करे और पाप करे। But then we must have, as the song says, have courage, my boy, to say no. और जैसे गीत है कि आप ढाढ़स बांधो भाई और कहो नहीं। So when we say no to the sin and yes to God, God strengthens us. और हमें पाप को ना कहना है और प्रभु को यस हाँ कहना है। So may, dear brothers, let us glorify God in our lives. तो भाइयों, हमें अपने जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा करे, Even if it costs us a lot of suffering and difficulty. और हो सकता है बहुत सारे कीमत चुकाना पड़े हमें दुख तकलीफों के द्वारा। God will stand with us. और प्रभु हमारे साथ खड़ा है। As he stood with all the men of God. और सब प्रभु के जैसे प्रभु के दास लोग सब खड़े थे। And we should become heroes for Jesus Christ. और हम सब एक परमेश्वर यीशु मसीह के नायक बन सकते हैं। So God bless us all, brothers, and let us learn. We can all share one by one what God has spoken to us, and in our life and our following and our desire to follow the Lord. तो आप इस भाई बहन शेयर कर सकते हैं जो प्रभु ने आपके जीवन में बात किया है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। कोई भी शुरू कर सकता है। Anything that is in your heart,
आपके किंग्स के बारे में बातचीत कर सकता है रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, अप्लाई टू आवर पर्सनल लाइफ। हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमको बहुत सीख मिलेंगे। तो हमारा जो लालसाएं हैं सब हमको प्रभु के द्वारा वी कैन क्रूसिफाई इट एंड लेट अस फॉलो द लॉर्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो एनीबडी कैन शेयर। तो कोई भी शुरू कर सकता है शेयरिंग के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं भी जब चार्ट देखा था तो उसमें बहुत सारा देखा कि हर जगह पे लोग गलत राह में ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो प्रभु का भय मानते हैं। तो मैं सुलेमान के जीवन से देखा और नीचे भी दो जगह पे वहाँ पे लिखा हुआ था, जोसाया और अमायजिया। उसमें लिखा था कि वो लोग जवानी के जीवन में बहुत अच्छा थे, लेकिन जब वो पुराने जब हो गए, बहुत उम्र हो गया, तो बाद में वो दुष्टता में बुराई में चले गए। तो इससे मुझे चेतावनी मिल रहा है मुझे कि प्रभु कह रहे कि ऐसा ना हो कि, इसलिए वचन भी कहता है कि अपने जवानी के दिन में स्मरण रखो। तो उसमें प्रभु परमेश्वर मुझसे बात करे कि अपने विश्वास को सुरक्षित रखो और जीवन के अंत तक, आखिरी सांस तक इस शरीर में और विश्वास की रखवाली करो। जैसे पौल ने भी बोला कि मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने उसकी रखवाली किया है। तो प्रभु इससे बात कर रहे थे कि हम मुझे चेतावनी दे रहे थे कि अलर्ट रहना, बहुत सारा ऐसा दुख आएगा, बहुत सारे सताने वाले लोग मिलेंगे, गलत रास्ते दिखाएंगे, लेकिन उन सब में परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए जीवन जीना है। तो प्रभु बहुत सारे बातों से बात कर रहे थे। इवन एक एक बार मैं जब रास्ते में जा रहा था, जब काम के टाइम में, तो एक व्यक्ति को मैं दुकान पे मिला था। तो वो व्यक्ति बाइबल खोल के पढ़ रहा था। तो मैं उससे बहुत खुश हुआ कि एक काम काम पे जो कभी भी हम कोई दुकान में जाते हैं तो सामने टेबल पे ऊपर उसका बिजनेस होता है, लेकिन उसने काम वाम का सब अंदर रखा हुआ था और टेबल पे बाइबल रख के बोल्डली वो पढ़ रहा था। तो उस समय मुझे उसका उनसे बोला, उनको लिए दो तीन वचन बांटने का भी मुझे अवसर मिला। और मैंने देखा कि परमेश्वर के भय मानने वाले बहुत कम हैं जो कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो उनका मैंने कांटेक्ट लिया और कुछ प्रभु के वचन भी शेयर किया। तो एक चीज देखा कि वो मैं वापस भी उधर से फिर सेकंड राउंड में लौट के आया, फिर भी देख रहा था कि वो बाइबल पढ़ रहे थे। तो इस चीज से समझ में आया मुझे कि प्रभु का भय मानना, उनके वचन का पालन करना मुझे बहुत आवश्यकता है। और खासकर मेरे जीवन में तो बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले हैं जो हमें बहुत सारा लुभाने वाली बातों कहते हैं और गलत राह में करने के लिए फोर्स करते हैं। इस संसार में ऐसे है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। और सुलेमान के जीवन से यही चेतावनी मिल रहा था कि प्रभु से जब वो प्रार्थना किया था तो बहुत उस समय टूटा हुआ उसका दिल था, कितना अच्छा था। तो प्रभु से हम भी, प्रभु मुझे जब टूटे हुए दिल में प्रार्थना करेंगे तो हमें प्रभु उत्तर देंगे, लेकिन इस बात का आगे ध्यान रखना चाहिए। मुझे ध्यान रखना है कि आगे कहीं भी कोई ऐसा परीक्षा है, कोई टेम्पटेशन आए या कोई ऐसा सिचुएशन आए, तो इसमें हमें परमेश्वर को दोष नहीं देना है, लोगों को दोष नहीं देना है। बहुत चौकस रहना है। जैसे आयुब में ने भी परीक्षा में कभी भी प्रभु को दोष नहीं दिया। तो इसमें इससे यही मुझे मालूम पड़ा है कि मुझे राजाओं से यही सीख मिल रहा है कि प्रभु का भय मानते हुए जीवन जीना है। और इब्रानियों हिब्रू में भी लिखा हुआ है कि 10 में 31 कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। To give a testimony and गवाही देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जीवन में हम भी
यीशु मसीह ने जैसे गवाह दिया कि मेरा जीवन, मेरा जिंदगी, मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, हमको भी रोज ये गवाही देना चाहिए। तो आपको आपको एक मौका है to give a testimony that my kingdom, I'm not going to live for the world, I'm going to live for Jesus. Anybody else can share? Maybe brother, sister, brothers. जोर से बोलिए, somebody speaking, जितेंद्र है क्या? थोड़ा आवाज उठाइए, थोड़ा माइक के पास आना। तो मैं मतलब बहुत मतलब जब से मैंने बपतिस्मा लिया तब से बहुत ज्यादा मतलब ये पापों में ये सब में मतलब पहले पहचानता नहीं था, बट अभी पहचानने लगा। बट मतलब पहले से ज्यादा मैंने ऐसा मतलब बहुत पाप में गिरने लगा। फिर मुझे एक वचन अभी मुझे याद आया, और जब परमेश्वर ने जब बाइबल पढ़ रहा था तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैं इन सब चीजों से कैसे विजय पाऊँ। तो मुझे इसमें फिर एक वचन ये आया है, याकूब चैप्टर 2 वर्ष 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि सही है, मतलब मैं विश्वास तो करता हूँ लेकिन मैं उस चीज पे नहीं अमल करता हूँ, मतलब जो चीज मुझे परमेश्वर ने रोका है। बट वो चीज अगर मैं करता रहूंगा कंटिन्यू तो मुझे परमेश्वर अंत दिन में ना बोल देगा, क्योंकि सीधा ये बताएगा कि मैं तो तुम्हें सब कुछ दिया था लेकिन तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। विश्वास भी किया तो उसके जैसा चला नहीं, जैसे मतलब जिस चीज पे मैंने रोका था मतलब ये चीज गलत है वो चीज तुम कर रहे हो। क्योंकि कोई कुछ ऐसा तो मेरे जीवन में ऐसा है मतलब कि मैं बहुत पाप में गिरता था, और मतलब मुझे कोई पकड़ नहीं सकता ऐसा। मतलब मैं पाप को कभी दिमाग से मतलब ऐसा सोचता था कि मतलब कुछ गंदे गंदे विचार, तो ऐसा मतलब मेरे बीच में आ रहा था। तो ये वचन जब मुझे ऐसा लगा तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, परमेश्वर हर जगह है परमेश्वर और मुझे देखता है, और ये वचन के द्वारा मुझे बात कर रहा है। अगर मैं अभी भी नहीं सुधरा तो मुझे परमेश्वर छोड़ देगा, फिर आगे चल के मैं संसार में भटकूंगा। इसके लिए मुझे इससे इंकरेजिंग हुआ। प्रेज द लॉर्ड। Anybody else? Veer? Yes, brother. Praise the Lord. मुझे एक वचन से उत्साह मिला है, वो जो 2 कोरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 9 और 10 से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं आनंदित हूँ पर इसीलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसीलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। तो हम लोगों का मुझे ये चीज को मैंने एंजॉय किया, आनंद किया कि तो हमारा जीवन में जो भी तकलीफें, दुख, बीमारी या कोई भी कमी घटी, कोई भी ऐसा चीज आता है कि हम लोग जब शरीर के हिसाब से सोचते तो उसमें काफी दुखी हो जाते हैं हम, काफी मन टूट जाता है। हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये है, वो है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है। तो फिर भी जब हम आत्मिक जो परमेश्वर की दृष्टि से जब हम देखते हैं उस चीज को, तो उसमें हमें आनंद होता है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ताकि हम संसार में फिरते हैं, हम कोई संसार की चीजों के पीछे हम लग जाते हैं। जाने अनजाने में शैतान हमें भरमाता है, तो कोई अच्छी वस्तुओं के लालसा में हमें फंसा देता है। तो हमें तो निरंतर जब हम परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर इस तरीके से हमें सिखाते हैं, हमें उत्साह देते हैं कि हमें जो पौलुस कहते हैं कि यहाँ पे
जो भी तकलीफ, कठिनाई, जो भी शौक जो आता है, उससे हमारे लिए अच्छाई के लिए होता है, हमारे मन फिराव के लिए होता है। तो 9वां वचन में लिखा है, अब मैं आनंदित हूँ, पर इसीलिए नहीं कि तुमको शौक पहुंचा, तो वरन इसीलिए कि तुमने उस शौक के कारण मन फिराया। तो हमें जो भी तकलीफें आती है, उससे हम लोग उस खुद अपने आप उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं। पर हम लोग जो है उस चीज को समझ के, ये तकलीफ हमारे जीवन में क्यों आ रहे हैं, तो उसको हम जब परमेश्वर की नजर से जब देखेंगे, तो हमारे लिए एक मन फिराव को लाता है। उसी से हम सच्ची मार्ग में परमेश्वर की ओर फिर सकते हैं। तो उसी से परमेश्वर को हम लोग प्रसन्न करने वाले जीवन को जी सकते हैं। और हमारे जो जैसे कि याकूब की पत्री में भी 2 अध्याय में लिखा है, जो हमारा परीक्षा जो होता है उसमें हम आनंदित होके हमें उस परीक्षा को पूरा होने देना है, ताकि उस परीक्षा के बाद ही हमारा विजयी जीवन और हमारा सामर्थ्य जो है उसी से हम लोग को पता चलता है। तो ये इस 2 वचन से मुझे प्रोत्साहन मिला है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। I want to thank and praise God. Yes, thank you. Brother. Hello, sorry, I went on mute. I want to testify about this Tuesday. Brother was saying that whenever we are going through trials, God is working in us. Okay, and we should face this problem with faith. And I was meditating it when brother said, how is that possible that when you're in trial, you can be joyful? And when we are not joyful, brother said that we say to God that you cannot help me. And that's an unbelieving faith. The only way that we can face the trial is with faith, saying, yes, I'll go through this. I'll not open my mouth. Even if I'm irritated, even the other person is wrong, I'll keep my mouth shut. And I was meditating, and God put me in a situation in my office on Thursday, and I chose not to speak about it, and I kept quiet. And after maybe 3 to 4 minutes of conversation, the other person was quiet, and I felt there was a peace, and the glory of God handled that situation. And ever since then, God or Holy Spirit is always reminding me, even if whatever happens around me, I will choose not to speak, whether I'm right or wrong, because I have to follow God in every situation, and I have to be true to Him. Amen. Yes. Praise the Lord, brothers. The most important thing we can remember that the biggest idols in our life, सबसे बड़ा मूर्ति क्या होता है? हमारा स्वयं का ईगो, मेरा घमंड और ये sexual desires, बहुत ही हमको they drag us down, and money also. So we have to be very very careful. हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए इन चीजों में कि प्रभु आपको पहले मेरे जीवन में रखना है। कभी लालसाएं हमको बहुत खुश आनंद देते हैं, all the desires हम लोग इंटरनेट पे देखते रहते हैं. We have to stop it. Say, Lord, no, Lord, I want to run away from it. I want to flee from youthful lust. So then God becomes very close to us and fills us with the Holy Spirit, and we can walk with God right up the very end. So परमेश्वर हमको सहायता भी दे देंगे. तो हमारा मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए. प्रभु के ऊपर मन रखेंगे और प्रभु को we must cry out to God, Lord, please help me in this situation. And the Lord said, now run away from it. And all, as brother said, just keep quiet. Don't keep on arguing. Just keep quiet and be humble. And then we will find that God works on our behalf. प्रभु हमारे खिलाफ हमारे side में आ जाएंगे, and we can get the blessing and the personal presence of God every day in our life.